Okay, and I believe the screen is also available. Sorry for the delay. We got an unexpected power cut at the office, and we'll start the session. तो वैसे तो I don't think he will be able to cover much today, but let's go through that outlier detection demonstration that we couldn't complete yesterday. So we all know what outliers are, and we were trying to detect them and trying to remove them from our data set. So for that, we had got this data set, which was by the name of Fetch California Housing from sklearn dataset module. Once we got it, we transformed it into a pandas data frame, and it is looking like this currently. Now, we studied about Z-score yesterday, and what Z-score is, it simply tells you how far is each value from the average of the people. Or better to say, how much standard deviation away each value is from the average of the data. Okay. And we calculated set scores to understand where our data lies. So it is what it is a measure of position. So since it is a measure of position, it helps in detecting outliers. So there are two ways to detect outlier. एक तो हो सकता है Z score और दूसरा हो सकता है IQR, which is interquartile rate. Can you guys recall what IQR is? एक बार thumbs up दिखा दो. IQR क्या होता है? Z score क्या होता है? All right. So this was the data set और हमने क्या कर लिया था that we calculated the Z score of all the values inside the data set. So Z score calculate करने के लिए एक simple चीज करनी होती है that you pass your data frame. Let me just run out the cells once. हाँ जी, तो एक simple चीज करनी होती है that you have your data frame and you pass it through the Z score function. Okay, so this gives you Z score of all the values and Z score can change. Okay, it generally ranges from plus minus 3 standard deviation. Okay, so plus minus range में 3 तक ये जा सकता है because mostly values in a data set they are they can be found in this range only. इसके बाहर की जो values होती हैं उनको भी consider outlier. Okay, so here just for the ease of explanation what we did, I performed an absolute of all these values. Absolute क्या करेगा कि whatever are the negative values in my data, I don't want to define a lower limit for them as well. ठीक है, अभी के लिए मेरे को सिर्फ filter limit define करनी है कि less than 3 अगर है तो it is not an outlier, otherwise it is an outlier. So for that sake only, what I did, I passed it inside the np.absolute function, and this is the data frame that we get. अब मेरे पास सिर्फ positive values है. But this is an unnecessary step. ये करना नहीं होगा. Because in this case, your values they will get affected. जिनका standard deviation क्या आ रहा था, negative आ रहा था, which means like they were below the average of the data. उनका मैंने positive में convert कर दिया. Like I'm in this manner I have changed their position. Okay, so this is like misconveying information. So you don't have to do this, but abhi just for the sake of demonstration we are doing it. Okay. So this is the data frame that we have currently. और what I was trying to do, firstly हमने इसको plot करना था. So when I plotted it, firstly I used box Seaborn library और Seaborn में the box plot function is used to check whether an outlier is present or not. But since this is a very massive data, इसमें कुछ 20,000 rows और 9 columns present है, so I'm not able to get any kind of clarity from this visualization. So what I did, I used Plotly libraries express module और उसमें to plot the box plot we have a function box. इसके अंदर pass your data frame. So this is my data frame. और when you run it, this is the graph that we got. This graph में Plotly allows me to zoom into any particular part of the graph. And when I zoom in enough, I'm able to see this box kind of structure. This is a box plot and it conveys like very so many meaningful information.
कौन कौन सी? जैसे कि दिस लाइन हियर, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो द बॉटम लाइन इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पॉपुलेशन कॉलम। ये वाली जो लाइन है जस्ट अबव इट, इट रिप्रेजेंट्स द Q1 or quartile 1. The middle line represents the median of the data, and this line represents the Q3 or the third quartile. इसके ऊपर like the topmost line that you can see, that represents the maximum value. इस वैल्यू के ऊपर जितना भी डेटा है, these values they are the outliers. Okay, तो इन्हीं को हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं। अब इनको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे? वी हैव डिफाइंड अ थ्रेशोल्ड। मेरा थ्रेशोल्ड क्या है? इट इज 3। ओके, सो जैसे ही क्या कर रहे थे पांडास में हमने फिल्टरिंग करी थी कि आइरिस डेटा सेट के साथ कि अगर सेपल लेंथ इससे बड़ी है तो लाइक प्रोवाइड मी द रिकॉर्ड्स। सेम काइंड ऑफ फिल्टरिंग वी आर गोइंग टू डू, and for the filtering we will be using np.where function. Now what this function does, यहाँ पे भी ये condition satisfy हो रही होंगी, it is going to give me the location of that particular place. जिसमें क्या आएगा मेरे पास? रो आएगा और कॉलम आएगा। Okay, so this where function it gave me a tuple. This is a tuple, you can see कि पहले parentheses है और last में भी I would have a parentheses here. इस tuple में we have two arrays. एक array तो एक मिनट, या दिस इज वन array और इसके बाद दूसरा array है। पहला array contains list of all the rows और दूसरा array contains list of all the columns. So if I want to visit a place, आप देख सकते हो कि कंडीशन क्या है कि कैलिफोर्निया डेटा फ्रेम में इफ आई वांट दोज प्लेसेस जहां पे द थ्रेशोल्ड इज एक्सीडेड, अगर ग्रेटर देन 3 वैल्यू है सो इट मींस दे आर एन आउटलायर। अब मेरे को कंफर्म करना है कि क्या ये एरे सच में ही मेरे को आउटलायर की पोजीशन दे रहा है। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन गेट फॉर अ पर्टिकुलर एलिमेंट, यहाँ से उसका रो उठाओ, सो रो इज 131 और नीचे जो दूसरा एरे है उसमें से उसका कॉलम उठाओ। कॉलम फॉर दिस पर्टिकुलर एलिमेंट इज 0। प्लीज ध्यान रखना कि कॉरेस्पॉन्डिंग रो और कॉलम ही आप लोग उठा रहे हो, अदरवाइज लाइक इट इज गोइंग टू मिसमैच। सो हियर इफ आई perform ilog indexing. Ilog क्या है? It is indexer. It will allow me to index out the value at this position. So 131 row पे 0th column में if this information is present in my array, there should be an outlier. और अगर outlier है तो value should be greater than 4. And here you guys can get a proof कि इस function ने मेरे को जो भी array दिया है उसके अंदर जो भी values हैं these are allocation for outliers. Got it? एक बार ही थम्स अप दिखा दो, यहाँ तक समझ में आ जाता है अगर सबको। ओके, अब क्या करना है हमें? अभी हमने आउटलायर तो फिल्टर कर लिए, लाइक फिल्टर भी नहीं करे, हमने उनकी लोकेशन पता करी है। मेरे को उनको डेटा फ्रेम से परमानेंटली रिमूव करना है। सो हाउ टू डू दैट? आई जस्ट वांट दोज वैल्यूज जो थ्रेशोल्ड से कम हो, राइट, क्योंकि वो आउटलायर नहीं होंगी। सो हमने क्या करा? कंडीशन डाल दी कि if the value in this data frame is less than the threshold, means less than 3, तब क्या करो? फिल्टर आउट ऑल सच वैल्यूज। अभी क्या है कि अपने पास दो फंक्शन होते हैं, एक होता है ऑल फंक्शन, दूसरा होता है एनी फंक्शन। ऑल क्या करता है कि अगर आप इसको किसी कंडीशन पे लगा रहे हो सो इट इज गोइंग टू रिटर्न ट्रू फॉर ऑल द प्लेसेस जहां पे ट्रू वैल्यू है। ठीक है, इट इज गोइंग टू फिल्टर आउट ऑल सच प्लेसेस। इट बेसिकली वर्क्स लाइक एंड। ठीक है, सारी जगह पे ट्रू वैल्यू आएंगी, जहां जहां आएंगी उसको ये आपको फिल्टर आउट करके दे देगा, विच मीन्स ऑल द वैल्यूज विच आर नॉट आउटलायर्स। इसमें एक पैरामीटर जाता है दैट इज एक्सेस। अभी मैंने एक्सेस किया है, एक्सेस इक्वल्स टू 1, विच मीन्स मेरे को कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करना है। एंड once you are done with writing this condition, what you can do, you can pass it as a subscript to your data frame. So this is my data frame. And this is what I get after filtering out all the outliers. अभी इस चीज को अगर प्रूव करना है कि क्या सच में आउटलायर्स हटे, सो लेट्स डू दैट। इसको आई एम कॉलिंग cal bf अंडरस्कोर सी, और इसकी शेप चेक करते हैं।
So currently the shape is 19,709. Okay. ये मेरा जनरल डेटा फ्रेम था एब्सोल्यूट करने के बाद। इसकी अगर मैं शेप चेक करती हूँ तो द शेप इज 20,650 व्हिच मींस यस इंडीड कुछ डेटा पॉइंट्स मैंने उठा दिए हटा दिए सॉरी इसमें से। ओके अब फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी लेट्स प्लॉट इट अगेन। तो एक बार इसका प्लॉट बना के देखते हैं इज देयर एनी सिग्निफिकेंट चेंज दैट यू गाइस कैन ऑब्जर्व इन द प्लॉट। तो यहाँ पे द डेटा फ्रेम इज कैलिफोर्निया डेटा फ्रेम अंडरस्कोर जी। What is a significant change that you guys can observe here? Yes, guys. क्या चीज है that you guys can observe? Outliers removed. हाँ, outliers removed. Though I still have so many outliers, but some of them are removed. And because of that, I can see कि मेरे जो box plot है, वो थोड़े like they are now they seem bigger now, okay, as compared to the previous one. So this happens when you are trying to remove some outliers. Now here we are going to perform some kind of learning. अब 2-3 चीजें यहाँ से मैं समझ में आती है कि बेसिकली आउटलायर रिमूवल इट इज नॉट अ वन स्टेप प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि मैंने कंडीशन डाल दी एंड आई कैन एक्सपेक्ट कि मेरे सारे आउटलायर हट जाएंगे। इट इज अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। आप अपनी फिल्टरिंग करोगे, यू आर गोइंग टू चेक अगेन वेदर द आउटलायर्स आर रिमूव्ड और नॉट। ओके if they are not removed and if you want to like make this process a little bit more aggressive कि आप चाहते हो कि सारे के सारे आउटलायर हटे, just manipulate your condition। यहाँ पे अपना threshold change करो, plot it again and have a look, are you satisfied with the results or not? Got it? अभी this was one way to remove outlier. Let's explore the second way which is IQR. Okay, अब IQR के बारे में हमने कल पढ़ा था that IQR is interquartile range। ठीक है, इंटरक्वार्टाइल रेंज मतलब कि मेरे डेटा का जो मिडिल 50% पार्ट है उसको हम इंटरक्वार्टाइल रेंज बोलते हैं और इसकी जो वैल्यू अपने पास आती है वो Q3 माइनस Q1 करके आती है। ओके, Q3 क्या है? Q3 इज द थर्ड क्वार्टाइल एंड Q1 इज द फोर्थ क्वार्टाइल। अगर मैं अपने डेटा को लेट्स से इफ आई हैव अ डेटा, अगर मैं उसको इस तरीके से डिवाइड कर दूं कि मेरा एक पार्ट अलग हो जाए लाइक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट डेटा और उसका लास्ट पार्ट अलग हो जाए। So Q1 it is the median of my first part. Q3 is the median of my last part of that particular data. And IQR is what? IQR is the middle part of that data. समझ में आया? कैलकुलेट भी किया था कल हमने। So अभी इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक रेंज डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने क्रेडिट स्कोर के केस में एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया। यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मूला होता है। सो दिस इज द फॉर्मूला and what you guys do, you define your lower limit and the upper limit. तो lower limit का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 क्वार्टाइल 1 माइनस 1.5 into IQR और अपर लिमिट का फॉर्मूला होता है Q3 प्लस 1.5 into IQR. Is it possible for IQR to be mean value of the median? हमारा सारी saying that कि mean और median सेम हो सकता है इस केस में। हाँ जी, हाँ जी, इट इज पॉसिबल। वी आर गोइंग टू हैव अ लुक अबाउट सच डिस्ट्रीब्यूशंस एज वेल जिसमें और क्लैरिटी में वी आर गोइंग टू लाइक say this statement कि mean or median is going to be same and that IQR is can also be that particular value. Got it? Okay. All right. So ये फॉर्मूला होता है फॉर लोअर लिमिट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर अपर लिमिट। अभी इस फॉर्मूले में What do we mean by 1.5? इसका थोड़ा रेवलेशन मैं बाद में करूंगी। पहले एक बारी अपनी Q1 और Q3 कैलकुलेट करते हैं, IQR कैलकुलेट करते हैं ताकि फॉर्मूले में वैल्यू रख सके। फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे और फिर देखेंगे कि 1.5 का सिग्निफिकेंस क्या है। So let's define Q1 and Q3 for this data. So the data frame that we have, sorry,
This was my data set originally. या तो मैं इस डेटा पे कर सकती हूँ, दिस इज द वन जिसका मैंने एब्सोल्यूट किया था। और आई गेस बीएफ वो है जिसमें मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया था। लेट मी जस्ट चेक वंस। हाँ, TF is my original data frame. Okay, so इस पे we are going to calculate the IQR. Now, in order to calculate Q1 and Q3, जो क्या होती है कि quartiles होती हैं, we use a function that is called quantile. क्वार्टाइल कैलकुलेट करने के फंक्शन का नाम होता है क्वांटाइल। इसमें आप मेंशन करते हो कि कौन सी क्वार्टाइल आपको कैलकुलेट करनी है। तो माय Q1 इज लाइक द 25th क्वार्टाइल, सो लाइक शुरू का 25% डेटा। सो यू आर गोइंग टू मेंशन हियर कि मेरे को 0.25 क्वार्टाइल कैलकुलेट करनी है। दिस इज Q1। ओके, लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ Q1। ये मेरे हर कॉलम में Q1 क्वार्टाइल 1 पे जो डेटा प्रेजेंट है उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है। ओके, लेट्स डू द सेम फॉर Q3 एज वेल। Q3 क्या होता है, दिस इज लाइक योर 75% ऑफ द डेटा। तो Q3 की अगर वैल्यू आपको काउंट करनी है, दिस इज Q3। IQR क्या हो जाएगा, IQR इज Q3 minus Q1। तो दिस इज माय IQR। प्लीज एक चीज याद रखना, IQR के लिए अगर वेरिएबल यूज कर रहे हो तो कैपिटल केसेस में यूज करना, क्योंकि IQR का फंक्शन इज दिस। ठीक है, right, so this is interquartile range, and now we have all the values for this formula, so we can easily substitute it. सबसे पहले we are going to figure out outlier exist कर रहे हैं तो कौन कौन से और कितने outlier exist कर रहे हैं। So what is my data frame? This DF is my data frame, और इस पे I'm going to put a condition. If DF की value, okay, it is less than Q1 minus 1.5 into IQR. So this is the lower limit. All right, and or okay, DF की value is greater than Q3 plus 1.5 into IQR. ये अपनी दो कंडीशंस है। When I do this, what do I get? I get true and false. True कहाँ पे है? True are the places where this condition is satisfied, which means we have an outlier, and false are the places जहाँ पे condition is not satisfied, कि यहाँ पे outlier नहीं present है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने फिल्टर आउट किया था, अगेन वी आर गोइंग टू फिल्टर आउट द आउटलायर्स फ्रॉम दिस डेटा यूजिंग IQR। तो यहाँ पे काफी इजी टेक्निक हो जाती है। ये आपने कंडीशन लिखी, एंड द ओनली वन थिंग दैट यू हैव टू डू राइट हियर इज कि इस कंडीशन को उठाओ, दूसरे सेल में रखो, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस, एंड यू गाइस कैन पास इट एज सबस्क्रिप्ट लाइक वी डिड अर्लियर। और एक एक्स्ट्रा स्टेप बस यहाँ पे याद जाता है दैट, एक मिनट, लेट मी जस्ट पुट ब्रैकेट्स। यहाँ पे आपने नेगेशन वाला सिंबल लगा देते। व्हाट डू वी मीन बाय नेगेशन? नेगेशन मींस कि अगर पहले हम क्या कर रहे थे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है जहाँ पे आउटलायर्स हमें मिल रहे थे, अब हम क्या करेंगे जहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रही, नेगेशन मींस नेगेट दिस होल कंडीशन। ओके, तो अब डेटा में सिर्फ वही वैल्यू रहेंगी जो कि आउटलायर नहीं है। ऊपर हमने ऑल फंक्शन लगाया था, यहाँ आप एनी फंक्शन लगाएंगे। अगेन एक्सिस इक्वल्स टू 1, क्योंकि कॉलम वाइज करना है। एनी का क्या मतलब यूज है इधर कि वी हैव टू कंडीशन, दोनों में से अगर कोई भी एक सेटिस्फाई हो रही हो, आई वांट दिस टू वर्क, सो एनी वर्क्स लाइक और and all works like and. Let's check it. Okay, we need to pass it as subscript, and these are the values that I got. एक बार इसको भी स्टोर कर लेते हैं। So this is California TF, and IQR से हमें फिल्टरिंग मिली है।
And let's check the shape of this data. You can see that the shape is what? It is 16,312 rows. मतलब पहले के comparison में I have removed more outliers. And if you check, this is the shape of original data set and this is the shape जो मेरे को Z score से मिली है. Okay, इसको भी एक बार plot करके देख लेते हैं. तो px dot box and this is what I get. Comparatively और भी outlier जो है वो remove हो चुका है. अब यहाँ पे let's learn about what is the significance of this 1.5. तो पहले मैं 1.5 के जगह कोई छोटी वैल्यू यूज करती हूँ. Let's use 0.5 as the multiplier. When I use 0.5, you can see that I'm able to remove 4 outliers. This is my data now. इसमें कोई भी outlier नहीं है. अब इस वैल्यू को थोड़ा बढ़ाते हैं. So in place of 1.5, I'm going to use 2. Okay. थोड़े कम outlier remove हुए as compared to जो 1.5 से remove हुए थे. This is how the graph looks like now. अभी what do we understand is multiplier की value से. So this parameter 1.5 that is used here, it is or you can call it a tuning parameter for this multiplier. कि इसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि कितना आपका अग्रेसिव आउटलायर रिमूवल हो रहा है. अगर वैल्यू ज्यादा होगी कम आउटलायर्स रिमूव होंगे, अगर वैल्यू कम होगी तो ज्यादा आउटलायर्स रिमूव होंगे, बिकॉज इट इज गोइंग टू एक्सपैंड और मिनिमाइज योर रेंज. अब यहाँ पे लाइक why do I need to use basically why do I need to figure this value out? क्यों मैं जैसे मैंने सबसे पहले 0.5 यूज कर दिया था और 0.5 में मेरे सबसे ज्यादा आउटलायर्स रिमूव हुए थे. इनफैक्ट कोई आउटलायर था ही नहीं ग्राफ में. कैन यू टेल मी व्हाई दिस इज नॉट अ करेक्ट अप्रोच? एनी आइडिया? I'm able to remove like maximum number of outliers, but still I'm saying that this is not a correct approach. Can you figure out why? Yeah, first of all, range is decreased. Second of all, data is lost. Okay. Data loss is like you can consider it as a disaster in machine learning. Okay. So yeah, again, Zal also said कि dynamic नहीं है, it is going to become static for this particular value. But the major thing here is the loss of data. So loss of data is not at all tolerable in machine learning. जैसे हम आउटलायर को टॉलरेट नहीं करते क्योंकि मॉडल खराब हो जाएगा, हम डेटा लॉस को भी बेयर नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेनिंग के लिए डेटा ही नहीं बचेगा. ओके, मॉडल को किसी चीज पे सिखाना भी तो है और सिखाने के लिए डेटा काफी ज्यादा होना चाहिए. कम डेटा पे अगर मॉडल ट्रेन हो तो वो इतना एक्यूरेट नहीं होगा. सो आई कैन नॉट से दैट इफ आई एम रिमूविंग ऑल द आउटलायर्स फ्रॉम माय डेटा इज अ परफेक्ट डेटा. नहीं, यहाँ पे तो डेटा ही नहीं बचा है. 20,000 रोज का डेटा था और उसमें से सिर्फ 6,000 रोज ही बची है, तो मैं कितना डेटा तो खा गई है. ओके, सो दिस शुडंट बी डन. You guys have to figure out कौन सा वैल्यू, कौन सी मल्टीप्लायर इज एक्टिंग बेस्ट फॉर यू. समटाइम्स you have to like कहीं कहीं पे कंडीशन ये भी आ जाती है कि you have to retain some of the outliers. ओके, क्यों? क्योंकि अगर आप उनको रिमूव कर रहे हो तो उनके साथ और भी डेटा जाता है. So the main thing that you should recall and you should remember all the time is that extreme outliers को हटाना is very necessary. अगर आप कुछ outliers को retain भी कर रहे हो, so उतना फर्क नहीं पड़ता. Like the outliers which are very close to my maximum value, and if I'm not able to remove them at all in a like efficient way, so कोई बात नहीं, retain कर लिया. All right. दूसरी चीज, एब्सोल्यूट का प्लीज ध्यान रखना. सिर्फ मेरे को एक ही रेंज डिफाइन करनी थी इन जी स्कोर, इसीलिए मैंने वैसा किया. दिस इज नॉट अ स्टेप टू रिमूव आउटलायर. ओके, अगर यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट नहीं किया होता तो आई शुड हैव लाइक मेंशन्ड अ लोअर रेंज एज वेल. यहाँ पे थ्रेशोल्ड कहा किया था मेंशन.
आई गेस इट वाज बिलो। हाँ, सो आपको जैसे एक अपर लिमिट आपने डिफाइन की है, एक लोअर लिमिट भी डिफाइन करनी होती, और आपको आउटलायर इस बॉक्स प्लॉट के नीचे भी दिखते हैं। ओके, गॉट इट गाइस? Can you please give me a thumbs up if you understand outlier detection and outlier removal? Okay. Will you be able to do it without? If you want if you want to add something, please feel free to use the chat box. All right. एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं और we like end the session क्योंकि there is not much time left. Just give me a moment. हाँ जी, so the thing that we are going to discuss now, it is probability distribution. अभी अपने को बेसिक स्टैटिस्टिक्स का आइडिया है, हमारे को ये भी पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें यूज हो सकती है और क्या क्या चीज कैलकुलेट करते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स को साथ में पढ़ना है। तो जब आपके पास क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट को लेके आपके पास मतलब जितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी है और आप उसको प्लॉट कर दो, उसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एनालाइज करने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेते हो। और हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े, पोजीशन पढ़े और मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़े, दो तीन चीजें और आएंगी। ये सारे के सारे आप यूज करते हो टू एनालाइज दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं आपको बोलूं कि इफ यू रोल अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 6 आएगा? ऑन रोलिंग अ डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 6 आएगा? 1/6, right? For every number it is 1/6, है ना? तो if I plot it and if I like plot the probability of all these numbers, सबकी सब 1/6 है, but let's change the question, और what I am trying to say here is that अब मैं बोल रही हूँ कि 2 डाइस हम रोल कर रहे हैं like यहाँ पे। okay, so what we did first कि हमने 1 to 6 की प्रोबेबिलिटी चेक करी, और कोई भी नंबर रोल होगा तो सबकी सेम प्रोबेबिलिटी है विच इज 1/6। नाउ आई एम सेइंग कि मैं 2 डाइस रोल कर रही हूँ और आई एम गोइंग टू चेक कि हर एक डाइस पे लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 2, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 12, 3, 11 सो ऑन। तो ये क्या है? ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज व्हाट कि जितने भी प्रोबेबल इवेंट्स हैं सबकी मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी। ओके, एंड व्हेन आई प्लॉट इट, this is how the distribution is going to look like. थोड़ा कर्व आएगा मेरे पास। What is this graph telling me? The x-axis, it basically denotes the sum on the dice, and the y-axis, it denotes the probability कि किस sum के आने की ज्यादा probability है। Normally, if like we would have thought about it, हमें लगता कि मतलब इतना seriously हम इस चीज को नहीं देखते कि किसकी probability ज्यादा है किसकी नहीं है। But when we plot it, एक क्लियर डिस्टिंक्शन हमें दिख रहा है कि देयर इज अ वेरी हाई चांस कि जो सम आएगा दैट इज गोइंग टू बी 7। 2 और 12 आने की प्रोबेबिलिटी सेम, 3 और 11 आने की प्रोबेबिलिटी सेम, 4 और 10 की सेम, एंड 7 हैज द प्रोबेबिलिटी। सो दिस इंफॉर्मेशन, okay, which is like probability of all probable outcomes related to one particular event, it is plotted in a probability distribution. और by looking at this probability distribution, मेरे को काफी सारी चीजें जो है वो क्लियरली समझ में आ जाती हैं जो नॉर्मली नंबर्स देख के मेरे को नहीं समझ में आती कि अच्छा इतना सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन बन सकता है। डू यू गाइस सम आइडिया व्हाट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज? तो जैसे हमारे पास लाइक इन रियल लाइफ सिनेरियोस हम किसी भी डेटा को लाइक आईक्यू ऑफ अ पॉपुलेशन या फिर हाइट्स ऑफ पीपल, वेट्स ऑफ पीपल, इनको जब हम प्लॉट करते हैं दे ऑल ऑफ दिस डेटा इट कैन बी प्लॉटेड इन अ सिमिलर मैनर। दिस इज आल्सो गोइंग टू रिफ्लेक्ट
a similar kind of distribution. Now, since this is a very significant distribution कि काफी सारे डेटा में आपको देख a bell shaped curve, तो इसकी सिग्निफिकेंस देखते हैं कि क्यों इट इज नेसेसरी. So basically, probability distribution describe all possible values of probability for a random variable within a given range. अब ये जो रैंडम वेरिएबल है ना, जब आप प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड काफी सारे थ्योरम्स के बारे में पढ़ते हो तो इसका मेंशन बहुत सब जगह होता है. सो रैंडम वेरिएबल इज बेसिकली अ वेरिएबल जिसके रिलेटेड यू हैव एन आइडिया कि कौन कौन सी वैल्यू दिस वेरिएबल कैन टेक. ओके, जैसे अभी अपने पास हमने 2 डाइस रोल किए, हमें पता था कि सम खेल सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है. वी न्यू अबाउट दीज वैल्यूज और इनमें से कोई एक पर्टिकुलर सम के लिए प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाई. सो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसके से रिलेटेड है. यू न्यू कि पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं और उन्हीं सेट ऑफ आउटकम में से एक वैल्यू रैंडम वेरिएबल की होगी. Now, probability distribution, they are depicted using graphs and probability table. इनको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं क्योंकि ये बताते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर इवेंट सबसे ज्यादा टाइम अकर हो सकता है. कुछ चीजें जो हम पढ़ चुके रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स जैसे कि एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी आप लोगों ने स्क्यूनेस और कर्टोसिस नहीं पढ़ा है, दैट विल टेल यू लेटर. Variance, all of these things they affect a probability distribution and we will see how it affects. Can you please give me a thumbs up if यहाँ तक everything is clear? Yeah, all right. So this particular kind of distribution जो हमने अभी देखा था, that is called a normal distribution. Basically ऐसा distribution which is symmetric और लेफ्ट साइड पे भी उतना ही एक्सटेंड हो रहा है, राइट साइड पे भी उतना एक्सटेंड हो रहा है, उसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं. नाउ दिस डिस्ट्रीब्यूशन इसके कुछ क्या होता है, लाइक कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दोस कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी. So the data for this particular distribution, it is of symmetric nature and it is not skewed. अब skewed होने का क्या मतलब है? Skewness क्या है? It is a property of any distribution. It is property of symmetry. कि कितना सिमेट्रिकल है. अगर सिमेट्रिकल है तो उसको हम बोलते हैं अनस्क्यूड. अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो उसको हम बोलते हैं स्क्यूड. मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा ज्यादा लाइक एक्सटेंडेड है या राइट पे ज्यादा एक्सटेंडेड है, बेसिकली सिमेट्रिकल नहीं है. इस ग्राफ में मीन, मीडियन और मोड ये तीनों क्वांटिटी इक्वल होती है. सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपका एवरेज, आपकी मिडिल वैल्यू और आपकी मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू दे आर वन एंड द सेम. स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है? इट इज 0. अभी स्क्यूनेस तो हमें पता लगी कि सिमेट्री होती है, ये कर्टोसिस क्या होता है? तो 1 मिनट मेरे को देना बस. ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो, these graphs they are denoting skewness, lack of symmetry. This is known as positively skewed, this is known as negatively skewed. कर्टोसिस क्या होता है? विद रेस्पेक्ट टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा? जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. इफ द ग्राफ दैट यू आर गेटिंग उसकी पीक काफी ज्यादा हाई है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कर्टोसिस. ऐसा ग्राफ जिसकी पीक जो होती है वो काफी हाई होती है, वो ग्राफ आप देख सकते हो कि उसका जो स्प्रेड है दैट इज वेरी लो, वेरी लेस. फिर अगर मेरा ग्राफ एज लाइक कंपेयर्ड टू अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी पीक जो है वो काफी जेंटल है, so such a graph it follows negative kurtosis. ऐसे ग्राफ का स्प्रेड काफी ज्यादा होता है. तो कर्टोसिस का जो कंपैरिजन है वो आप हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को लाइक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके करते हो. आप ऐसे ही नहीं बोल सकते लाइक व्हाट इज कर्टोसिस. आप हमेशा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ का एक मतलब लाइक माइलस्टोन सेट करोगे कि अगर इससे ऊंची पीक जा रही है तो पॉजिटिव कर्टोसिस होता है, इससे नीचे जा रही है तो नेगेटिव कर्टोसिस होता है. ऑब्वियसली इनके फंक्शंस होते हैं टू कैलकुलेट. अगर कर्टोसिस 0 आ जाता है किसी डेटा का
तो दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अगर नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यू होती है, वेल इट इज नॉट अ परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सेम स्क्यूनेस का भी है. अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो लाइक ग्राफ इज सिमेट्रिकल, अदरवाइज इट इज नॉट सिमेट्रिकल. प्लीज गिव अ थम्स अप अगर आपको समझ में आता है व्हाट इज कर्टोसिस एंड व्हाट इज स्क्यूनेस. Okay, so for most of the solutions, for most of the data that we see in our day-to-day lives, it is believed to be of normally distributed type. जैसे IQ scores हो गए, हाइट हो गए, वेट हो गया, क्योंकि ये जो डेटा होता है जनरली लाइज बिटवीन सर्टेन वैल्यूज ओनली. जैसे मोस्टली एक अपने पास क्या है कि वी हैव BMI इंडेक्सेस और हमें पता है कि इसके बाद के वेट्स जो होंगे वो 19 हो जाएंगे. इसके कम के वेट जो होंगे बेसिकली दे विल बी क्लासिफाई कैटेगराइज्ड एज मैल न्यूट्रिशन पीपल. सो ऐसा नहीं है कि इस रेंज के बाहर वैल्यू नहीं जा सकती, बट काफी कम वैल्यूज हैं और काफी कम चांसेस हैं कि कोई डेटा इस रेंज के बाहर आकर कर रहा होगा. So such a graph, it is called normally distributed. Most of the data, it basically it is gathered in the middle of the chart और बाकी at the end पे काफी कम डेटा पाया जाता है. उसके बाहर उस रेंज के बाहर कोई डेटा होंगे उसके काफी कम चांसेस होते हैं. ऑलराइट, अभी स्टैंडर्ड डेविएशन हमने बड़े शौक से पढ़ी था पहले स्टेटिस्टिक्स में, और इसका क्या अफेक्ट होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे. एक कॉमन सी चीज वी गाइस कैन रिकॉल कि स्टैंडर्ड डेविएशन इट टेल्स यू अबाउट द स्प्रेड ऑफ द ग्राफ. तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका ज्यादा है, द कर्व इज गोइंग टू बी वाइड, स्प्रेड ज्यादा होगी ग्राफ की. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो द ग्राफ इज गोइंग टू बी नैरो. और ये फर्क होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का अपॉन एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. अभी तो पढ़ा हमने स्टैंडर्ड, आपने क्या पढ़ा था हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है. तो एक एक्सटेंशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का. और अगर मैं बोलूँ कि मेरा जो डेटा है वही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं उसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट कर सकती हूँ. नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन. दिखने में इट इज लाइक प्रिटिली सेम, डिट्टो का डिट्टो वैसा ही है, सिमेट्री भी है, कर्टोसिस भी इतना नहीं है, पीक भी वैसी ही है, शेप भी वैसा ही है. बट इफ यू ऑब्जर्व द वैल्यूज ऑन द एक्स एक्सिस you can spot the difference. A normal distribution is a distribution जिसका mean median mode equal होता है. A standard normal distribution is a distribution जिसका mean is 0 and standard deviation E is 1. समझ में आया. बेसिकली आपने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ डेटा जिसका एवरेज 0 हो जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हो जाता है. समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब एक चीज जो है दैट वी ऑल कैन बेसिकली एक आइडिया या एक थॉट पॉपअप हो सकता है कि मेरे को इतना लोड लेने की जरूरत क्यों है, क्यों मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ रही हूँ. सो बेसिकली इफ यू हैव अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा और उसको आप स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर देते हो, सो देयर आर सम assumptions दैट यू कैन मेक अपॉन दैट डेटा. तो कुछ एम्पिरिकल रूल्स हो जाते हैं इस स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस के कि if a data is standard normally distributed, 68.3% of the data points will fall within one standard deviation of the mean. One standard deviation of the mean मतलब ये orange part से दिख रहा है. 95.4 will fall within two standard deviation मतलब ये blue और orange वाला जो part है. और 99.6% of the data points will fall within sorry this is not one, three standard deviation. Basically ये पूरा जो colored part है ग्राफ का, इसके बाहर जो होगा well that will be an outlier. Still, can you guys tell me what is the advantage of converting your normally distributed data into a standard normal distribution? Any idea? कोई vague idea किसी को मिल रहा हो उस चीज का?
Outliers का it is clear. Yeah, we will have a lowest number of outliers. Okay. लेट्स से कि मेरे पास एक डेटा है विच इज अबाउट द वेट्स ऑफ मेन, ठीक है, और मेरे पास पर्टिकुलर स्टेट लेट्स से दिल्ली में जितने भी आदमी हैं उन सबके वेट्स का डेटा है, गॉट इट। और मेरे पास एक दूसरा डेटा है रिलेटेड टू वेट्स ऑफ ऑल द वुमेन इन दिल्ली। आई कैन नॉट कंपेयर distribution which is about weights of men and women on similar grounds. दोनों का एवरेज डिफरेंट होगा, एवरेज वेट ऑफ मेल एंड फीमेल वुड बी डिफरेंट, बट सिंस आई नो कि both of the data is going to be normally distributed, I can convert them into standard normal distribution. फिर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाएंगे कि एवरेज जो है 0 हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। I can now compare these distribution on similar grounds. समझ आया? Can you please give me a thumbs up if you understood what I said? Okay, so these are a few advantages of getting to know what a distribution is. और अगर एक पर्टिकुलर काइंड का डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं और कैसे मतलब कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा। इन द forthcoming session we are going to learn about more such distribution और कैसे उनको प्लॉट करना है और क्यों हर एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे से डिफरेंट होता है। All right, with this we are going to end today's session and thanks for listening.